ये जो थर्ड वाला केस था हमारा लास्ट क्लास में, सेकंड केस तक हो चुका था, तो ये थर्ड केस था। इसमें बताया गया था कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज केप्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर, सो वी कैन से दैट इट्स इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ। ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, ठीक है। अब इसमें होता ऐसा है कि जैसे ये वाला पॉइंट है सेंटर ऑफ कर्वेचर, इसको माना है। क्या कह मतलब रहे हो आप? क्या कह रहे दिख हो? रहा है, ब्लैक स्क्रीन आ रही है। अच्छा, एक सेकेंड रुको। अरे यार, अभी देखो। यस सर, अब दिख रहा अब ठीक है ना? है। यस सर। ओके ओके। ओके, सो इसमें मैंने आपको ये बताया कि व्हेन एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ कर्वेचर, इट इमेज विल फॉर्म एट सेंटर ऑफ कर्वेचर इटसेल्फ एंड ऑफ द सेम साइज आल्सो। This is very important point. When any object is placed at center of curvature, its image will form at center of curvature, but of same size. If the size of image and size of object are equal, so we can say that the magnification will be 1. अब पॉजिटिव 1 है या नेगेटिव 1 है वो बात का केस है, वो भी मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। लेकिन इतना हमको क्लियर हो गया कि मैग्निफिकेशन क्या हो जाएगा, 1। अब मैग्निफिकेशन कैसे पता चलता है कि 1 हो रहा है? भाई मैग्निफिकेशन, व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर मैग्निफिकेशन? एम, size of image to the size of object. This is the formula for magnification, linear magnification. Okay, so we can say that if hi and ho are equal, so they are cancel out, so it will be 1, magnification will be 1. Okay, and you can see that I have written here size, same size as that of object. ये देखो मैंने लिखा भी है कि same size as that of object means जो size object का होगा वही size image का बन जाएगा as it is. If the size of object is 2 centimeter, then size of image will be 2 centimeter. Is it okay? So you have to remember that two light of rays incident, one parallel to the principal axis and another from focus. So you can see in this diagram, first ray of light is incidenting on the mirror parallel to the principal axis. This is the principal axis. So this light is incidenting parallel to the principal axis. Okay, so if this light is incidenting parallel to the principal axis, so we can say that it will pass through the focus after reflection. It will pass through the focus after reflection. This point is known as focus. Okay, and if another ray of light is incident through focus, so it will be parallel to the principal axis. These 2 or 3 points I have told you before in the previous classes. Okay, when any light ray incident parallel to the principal axis, so it will pass through the focus, and if any light ray is incidenting through focus, so it will become parallel to the principal axis. Okay, so these points should be clear to you, I think. So we can see that at a point where both reflected rays are intersecting each other, so at this point the image is formed, and we can see in this diagram that this image is real. This image is real. Why this image is real? Because this image is formed at the left side of the mirror. Okay, if this image form at the right side of the mirror, means polished side of the mirror, so we can see that the image will be imaginary or virtual. Image will be virtual. Okay, so whenever image is real, it will be inverted also. I've told you before in the previous classes, everything. Okay, whenever the image is real, that will be inverted also. And if the image is virtual, so we can say that it will be erect. It will be erect. Okay, so I think that this third point is clear to you now. Yes sir. Okay, now we'll move for the fourth point. So fourth point is when object is placed at focus and between focus and center of curvature. This is the case when object is kept between the center of curvature and the focus. Okay, so the concept is same. One ray of light incident through the parallel to the principal axis, so it will pass through the focus. You can see that this light is going through the focus. This point is focus. Okay,
And the second concept is the light ray is incidenting through center of curvature, and it will retrace its path. When any light ray incident through center of curvature, so we can see that it will retrace its path. Okay, so at this point, both reflected rays intersect each other. At this point, yellow point, both reflected rays intersect each other, so the image is formed. Okay, and we can see that in this case also the image is real. The image is real. Is it clear to you or not? Yes, sir. Okay, very good. Okay, so I think that everything is clear to you in the slide. Yes. Okay, very nice. Now we'll move for the next slide. So this is our next slide. So in this slide, we can see that the fifth point. So fifth point is when object is placed at focus. When object is placed at focus. Okay, listen. When object is placed at infinity. Okay. When object is placed at infinity, so we can see that the light rays are incidenting on the mirror by the distant object is parallel to the principal axis. Or we can see that when any object is kept at infinity, so the light rays incidenting on the mirror that will be parallel to each other or parallel to principal axis. Okay, so this point is reverse to that point, because in this point object actually at a point means at a focus. Okay, so the light rays will become parallel to the principal axis after reflection, or parallel to each other after reflection. So you can see in this diagram that when any light ray is incidenting, when any object is kept at focus, so we can see that object is placed at this point. This point is focus. Okay. So concept is same to draw the image. What is the concept to draw the image when any light ray incident parallel to the principal axis? First ray of light is incidenting parallel to the principal axis, and the second ray of light incidenting through center of curvature. This is, you can see that. Okay, you can see in this diagram center of curvature, so it will retrace its path. So we are seeing that there are two reflected rays. First is this, and another is this, and the distance between these two lines are same at every point. At every point the distance between these two lines are same. Or we can see that you may know, I think you should know that when the distance between two lines is same at every point, so we can say that the lines should be parallel to each other. I think this point is clear to you. Yes, sir. Okay. So now we can move for the next point, point number 6. When any object is between pole and focus, the object is placed at between pole and focus. This is the special case. In this case, we can form a virtual image in the case of concave mirror. This is only the case when virtual image is formed by concave mirror, because the object is kept between the focus and the pole of mirror. Okay. Okay, now, so we'll draw the we'll draw the ray diagram. So at the first, we are seeing that at this point the object is placed AB, and we are seeing in this diagram that object AB is placed between focus and pole. Okay, so one ray of light is incident to the pole, so it will reflect at the same angle, because as we know that in the case of reflection, angle of incidence must be equal to angle of reflection. So in this case we are seeing that I is equal to r. I is equal to r. So if this light is incidenting at an angle I, so it will reflect at the same angle. Okay, call it r only, but we know very well that I is equal to r, nothing else. Okay, and one more thing, another ray of light is incidenting. Another ray of light is incidenting through center of curvature. So we can see that it will reflect, or we can see that it will retrace its path.
It will retrace its path. Okay. I think you know the meaning of retrace. What is the meaning of retrace? तो मतलब आगे चले जाते हैं लाइन। ना ना ना, ऐसा नहीं है, आगे नहीं चली जाती है, आगे नहीं चली जाती है। रिट्रेस का मतलब होता है बस सेम जगह से आती है, हाँ मतलब जहाँ से वहां से आ जाएगी। हाँ, जैसी जाएगी वैसी वापस आ जाएगी। जैसे अगर कोई लाइट इस तरह से जा रही है, ये कोई लाइट अगर जा रही है, ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही वापस आ जाएगी, सेम टू सेम पाथ पे। देखो आ गई वापस। यस सर। इसको कहते हैं रिट्रेस करना। दिस इज कॉल्ड रिट्रेस। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं रिट्रेस। देखो ट्रेस का मतलब क्या होता है, पाथ को ड्रॉ करना, और रिट्रेस मतलब उसी पाथ को फिर से ड्रॉ करना। री मतलब ड्रॉ अगेन। ठीक है, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। यस सर। Okay, so now we'll move for the next heading. The next heading is uses of concave mirror. What are the uses of concave mirror? So the first use is used in torches, searchlight, and vehicles headlight to get powerful parallel beam of light. Okay, so remember this point that concave mirror is used in torches. Torch होती है ना वो, लगाते हैं जो रोशनी के लिए। टॉर्च, सर्च लाइट जो होती है, सर्च लाइट आपने देखा होगा वो टीवी पे शायद कभी आपने देखा हो, वो जेल वगैरह में देखा है ना, वो ऐसे लाइट डालते रहते, घुमाते रहते हैं, घुमाते रहते हैं, वही होती है सर्च लाइट। ठीक है, और व्हीकल्स की हेडलाइट में लगा होता है, व्हीकल्स की हेडलाइट में लगा होता है। ठीक है, ओके। सेकंड क्या होता है, कॉनकेव मिरर आर यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेज ऑफ टीथ ऑफ पेशेंट। और जैसे दांत में किसी के पेशेंट है, उसके दांत में कोई दिक्कत है, ठीक है, और उसके दांत में दिक्कत है, वो गया डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर को दिखाई नहीं दे रहा ठीक तरीके से उसके दांत में दिक्कत क्या है ना, पता चला किसी दांत में दिक्कत थी और किसी दांत का ऑपरेशन हो गया। ठीक है, तो वहां पे वो कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं उसको देखने के लिए, लार्ज दिखाई देता है, उसकी इमेज जो है ना, शार्प बड़ी इमेज दिखाई देती है, तो वो सब क्लियर हो जाता है। ठीक है, okay, now we talk about the point number 3. So concave mirror is used as a shaving mirror to see a large image of the face. शेविंग मिरर होते हैं ना, आप बाल कटवाने जाते हो, देखो अभी आप हेयर कट लेके बैठे हो, बढ़िया है ना, तो आप जो हेयर कट लेने गए थे तो उसके यहाँ पे आपने देखा होगा कि जो सामने वो मिरर वगैरह लगे होते हैं ना, तो कॉनकेव होता है। उससे क्या होता है ना, तो उसको बड़ा दिखाई देता है, बड़ी इमेज दिखाई देती है। जैसे कई लोग घरों में वो शेविंग वेविंग कर लेते हैं, ठीक है, तो वो इन जनरल मतलब क्या होता है कि कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं अपनी इमेज देखने के लिए, जिससे वो बड़ी इमेज दिखाई दे उनको। ठीक है, सर जो नॉर्मल मिरर्स होते हैं वो क्या होते हैं जो घर पे रहते हैं? वो प्लेन मिरर होते हैं, वो प्लेन मिरर होते हैं इस तरह से, ये प्लेन मिरर होते हैं। ठीक है, ये प्लेन मिरर मैंने शायद आपको बताया है, प्लेन मिरर शायद मैंने आपको बताया था, देखो कहीं तो होगा, मैंने बताया था याद है मुझे वैसे। ये है देखो, देखो स्लाइड ये वाली दिखी आपको? यस सर। हाँ, यही वाला प्लेन मिरर होता है, ये मैंने आपको शुरुआत में एक्सप्लेन किया हुआ था। प्लेन मिरर में क्या होता है कि जितने साइज की ऑब्जेक्ट होती है उतने ही साइज की इमेज बनती है। ठीक है, और जितनी डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखी होती है, जैसे मान लो कि ये एक्स डिस्टेंस पे है, तो इसकी इमेज भी एक्स डिस्टेंस पे ही बनेगी। ये होता है, क्लियर? यस। ओके, सो दिस इज अ image formation by plane mirror. Now we'll move for the next slide. Okay, so we are talking about the we are talking about the uses of concave mirror. So these are the 4 uses of concave mirror, so learn them simply. ठीक है, एग्जाम में पूछ सकता है कि टॉर्चेस में कौन से मिरर का यूज किया जाता है, विच मिरर यूज्ड इन टॉर्चेस, so you may write the concave mirror. Okay, now large concave mirror are used to concentrate sunlight
to produce heat in solar furnace, मतलब सोलर एनर्जी जो लेते हैं ना हम लोग, तो उसमें क्या होता है कि बड़े बड़े कॉनकेव मिरर लगा देते हैं, ठीक है, जिससे क्या होता है वो कंसंट्रेट कर देता है लाइट को, इसलिए। तो ये सिंपल से यूजेस हैं, आप इसको याद ही कर लो, इसको उतना एक्सप्लेन करना उसमें कुछ है नहीं इतना कि एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। ओके, now we talk about the next topic, ray diagram of image formed by convex mirror. Now we'll talk about the convex mirror, image formed by convex mirror. Okay, so we know very well that what is the convex mirror? The mirror whose internal surface is well polished. This is a concave mirror whose internal surface is well polished. So we can see in this diagram that its internal surface is well polished and external surface is reflecting. Okay, I have told you before that if internal surface is well polished, then outer surface is reflecting, and if outer surface is well polished, then internal surface will be reflecting. Okay. Now, if we talk about the first case, so for the first case is when object is placed at infinity. Means if object is placed at infinity, so we can see that the light incidenting on the mirror will be parallel to each other or parallel to the principal axis. So it will form an image at focus. When any when any object is placed at infinity, its image will form at focus. Okay. And if any object is placed at focus, so its image will be formed at infinity. Is it clear or not? Yes. Okay. So we can see in this diagram that when object is placed at infinity, so image position at focus, image कहाँ बनेगी? Focus पे. ये देखो स्पेशली लिखा हुआ है कि infinity पे अगर ऑब्जेक्ट है तो उसकी इमेज बनेगी फोकस पे, ठीक है। और इसका नेचर कैसा होगा? वर्चुअल नेचर होगा। वर्चुअल क्यों? व्हाई दिस इज वर्चुअल? बिकॉज वी आर सीइंग दैट the mirror is placed at something like this, so we can see that its focus will be at this side, its focus will be at right side. Can you feel it? Can you explain it why its focus is at right side? Because it is a convex mirror. वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कॉन्वेक्स मिरर तो है ही वो। ये तो मैंने पूछा कि कॉन्वेक्स मिरर में ऐसा क्यों होता है, उसका फोकस राइट में होता है। सर तो वो स्फेयर इस साइड में बनेगा ऐसे करके। वेरी गुड, वेरी गुड। इसके लिए अगर हम लोग स्फेयर बनाएंगे, कंप्लीट स्फेयर अगर इसके लिए बनाएंगे तो वो इसी साइड बनेगा। अब जब स्फेयर इस साइड बना है तो इसका फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर भी इसी साइड होगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर अगर इस साइड है तो उसका रेडियस भी इसी साइड हुआ, और रेडियस अगर इस साइड है तो उसका फोकस भी इसी साइड होगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा, ठीक है। बस एक कमी है तुम्हारे अंदर कि लर्न नहीं करते हो लेकिन दिमाग चलता है, ठीक है। इसको ओके, जैसे अगर हम लोग कॉनकेव मिरर की बात करते हैं, कॉनकेव मिरर की अगर हम लोग यहाँ पे बात करते, तो कॉनकेव मिरर में जैसे फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि ऑब्जेक्ट, अगर देखो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस यू से शो करते हैं, ये तो अभी आप सीख चुके हो। इमेज का डिस्टेंस वी से शो करते हैं, ये भी आप सीख चुके हो। और फोकल लेंथ एफ होता है, ये भी आप पता है, ठीक है। सो अगर पहला केस लेते हैं कि अगर यू है इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे है, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी? फोकस पे। सेकंड केस, अगर ऑब्जेक्ट रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अगर ऑब्जेक्ट रखी है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, कहने का मतलब 2r, सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब पूरा कंप्लीट, सॉरी 2r नहीं r, 2r कहां से आ गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब रेडियस हो गया ना उसका, तो इसकी इमेज भी कहां बन जाएगी? फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन जाएगी। अभी मैं माइनस प्लस नहीं बता रहा हूँ कुछ कि नेगेटिव क्यों नहीं लिखी सर आपने, वो तो लेफ्ट में बनती है, वो अलग केस है, वो बाद में बताऊंगा, वो अलग, वो अभी नहीं बता रहा, वो डिस्कस नहीं कर रहा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। यस अगर हम लोग थर्ड केस की बात करिए, कलर दिखाई दे रहा है कि नहीं? यस सर। हाँ,
तो अगर हम लोग थर्ड केस की बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट अगर रखा हुआ है बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा है तो इसकी इमेज बताओ कहाँ पे बनती है? तुरंत रे डायग्राम बना लिया करो। देखो जैसे ये हमारा हो गया मिरर, ये हो गई इसकी प्रिंसिपल एक्सिस, यहाँ हो गया कहीं फोकस, यहाँ हो गया कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये ऑब्जेक्ट रखी है। अब इससे क्या होगा, इमेज हमको बनाना है, हमको इमेज बनाना है। एक रे गई पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, फोकस से होके चली गई है इस तरह से, ठीक है। और एक रे अगर हम यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर से ड्रॉ करा देते इस तरह से, तो ये कहाँ कहीं ऐसे जाती, मतलब इधर कहीं ना कहीं कट। ये डायग्राम ठीक से नहीं बन पाया यार, गड़बड़ हो गया ये डायग्राम जो है, ठीक है। तो आप सीधा सा समझ सकते हो, ठीक है, कि अगर इस तरह से हमारा ये कोई मिरर है, जैसे मान लो विच मिरर इज दिस, कॉनकेव मिरर। तो अगर यहाँ पे कहीं ऑब्जेक्ट रखी हुई है, मान लो यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट रखी है, ये हो गया हमारा फोकस और ये हो गया हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब इससे एक लाइट जा रही है पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, तो ये चली गई फोकस से इस तरह से, ये चली गई फोकस से, ठीक है। और दूसरी लाइट इससे कहाँ से जाएगी, मान लो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही जा रही, मान लो ऐसे। तो ये इधर से ऐसे जाके यहाँ मान लो सेंटर कर्वेचर है, तो कहीं यहाँ पे ये एक दूसरे को कट हो जाएंगे ऐसे, ये कट हो गई मान लो यहाँ पे। तो इसकी जो इमेज है वो कहाँ बनेगी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर बन जाएगी। अब जैसे अगर हम फोर्थ केस ले लेते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, मान लो ऑब्जेक्ट रखी है फोकस पे। देखो बस ऑब्जेक्ट को स्लाइड कराते जा रहे हैं हल्के हल्के से। पहले ऑब्जेक्ट यहाँ रखी थी इन्फिनिटी पे, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, फिर ऑब्जेक्ट आ गई सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में। अब सेंटर को, अब ऑब्जेक्ट को रख दिया बिल्कुल फोकस पे। तो जब ऑब्जेक्ट रख दिया फोकस पे तो इमेज कहाँ बन जाएगी, अब इन्फिनिटी पे। कहाँ बन जाएगी, इन्फिनिटी पे। इसी तरह से आप फोकस से और आगे लाओ तो ये पोल होता है, तो अब ऑब्जेक्ट यहाँ रख दिया अपन ने, तो इसकी इमेज यहाँ बन जाएगी, वर्चुअल केस बन जाता है, ठीक है। अब मेरी बात सुनना, अगर आप याद करना चाहो ना तो आप अपने हिसाब से कई सारी ट्रिक बना सकते हो। जब ऑब्जेक्ट रखी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में यहाँ पे, तो इसकी इमेज कहाँ बनी थी, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये देखो, ठीक है। और अगर ऐसा हो जाए, मान लो सिक्स केस मान लो ऐसा है कि अगर ऑब्जेक्ट रखा हो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो अब इसकी इमेज कहाँ बनेगी। ये दोनों केस, ये वाला और ये वाला, ये बिल्कुल सेम है, उल्टा है बिल्कुल एक दूसरे से, रेसिप्रोकल। जब ऑब्जेक्ट रखी थी सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, तो इमेज बनी थी बियॉन्ड सी। अब ऑब्जेक्ट रखी है बियॉन्ड सी, तो इसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में, सिंपल। पता, अगर ऑब्जेक्ट आपने यहाँ पे रख दी, ये रख दी जैसे, तो अभी इसकी इमेज यहाँ कहीं बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। बात आई समझ? यस सर। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? यस। अभी आप एक बार अपने आप से फील करो इसको कि एक मिरर है, ऐसे आप फील कर सकते हो ना, एक मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ऐसे उसकी ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इस पॉइंट को फोकस बोल दिया, इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोल दिया। जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखी है, जब ऑब्जेक्ट कहाँ रखी है, इन्फिनिटी पे, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस पे। सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। हाँ, जब ऑब्जेक्ट रखी है इन्फिनिटी पे तो उसकी इमेज बन गई फोकस पे। ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से पास लाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर के थोड़ा सा बियॉन्ड रखा, अभी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से ही तो ला रहे हैं, पहले इन्फिनिटी पे थी, अब सेंटर ऑफ कर्वेचर के पास ला गए उसको। तो जब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड रखी है ऑब्जेक्ट, तो अब उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में। यस अब सर। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आ गए तो उसकी इमेज कहाँ बन जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही। देखो सुनो सुनो सुनो, मैं एक तरीका आपको और समझाता हूँ, यही याद हो जाएगा यार। आप जो कह रहे थे ना अभी कि याद नहीं हो रहा, अभी अभी याद होगा। ऑब्जेक्ट स्लाइड, ऑब्जेक्ट आ रही है लेफ्ट टू राइट,